رانا پور کے پرانے گاؤں میں لوگ اکثر عجیب کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کچھ گھروں پر ایسی بری نظر بیٹھ جاتی ہے جس کا اترنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ جس گھر پر وہ سایہ پڑ جائے وہاں خوشی دیر تک نہیں رہتی، مگر یہ سب پرانی عورتوں کی باتیں سمجھ کر لوگ ہنستے اور آگے بڑھ جاتے۔ لیکن سریا ان باتوں پر یقین رکھتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ہمیشہ ایک انجانا خوف بسا رہتا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی سایہ ہمیشہ اس کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہو۔ سریا کی بیٹی مریم ابھی 10 سال کی تھی، ہنستی کھیلتی، مگر پچھلے کچھ ہفتوں سے اس میں عجیب تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ پہلے اس نے کہنا شروع کیا کہ رات کو کمرے میں کوئی کالے کپڑوں والی باجی کھڑی ہوتی ہیں۔ سریا نے یہ بچی کا وہم سمجھ کر ٹال دیا، لیکن پھر مریم کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ کھیلنا چھوڑ چکی تھی، کھانا کم کرتی، فٹ فٹ پیچھے مڑ کر دیکھتی جیسے کوئی اس کے بالکل پاس کھڑا ہو۔ ایک رات سریا نے دیکھا کہ مریم کے ہاتھ پر نیل پڑے ہوئے ہیں، جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ یہ کس نے کیا؟ سریا کی آواز کانپ رہی تھی۔ مریم دھیمی آواز میں بولی، وہ میرے پاس آئی تھی امی، کہہ رہی تھی میں تمہاری دوست ہوں۔ یہ سن کر سریا کا دل دہل گیا۔ اسے اپنی نانی اماں کی بات یاد آ گئی۔ بری نظر کبھی نظر نہیں آتی، مگر اس کا اثر ہمیشہ دکھائی دیتا ہے۔ اس رات سریا نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہو رہا ہے۔ وہ مریم کے کمرے میں سونے آ گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے اسے خود محسوس ہوا کمرے کی فضا اچانک ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ کھڑکی بند تھی، لیکن پردے ایسے ہل رہے تھے جیسے کوئی اندر چل رہا ہو۔ پھر اسے ہلکی سی ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔ وہ کان لگا کر سننے لگی۔ آواز الماری کے اندر سے آ رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے الماری کھولی، لیکن الماری خالی تھی۔ بس ایک عجیب سی بانس باہر آئی، جیسے گیلے مٹی کے ساتھ کچھ سڑ رہا ہو۔ سریا کا دل دہل گیا۔ اسے لگا جیسے کوئی منظر اس کے ذہن میں زندہ ہو رہا ہے۔ مریم کی بات، نیل پڑے ہاتھ، اور اب یہ آوازیں۔ وہ رات کی طرح گزری، مگر صبح ہوتے ہی اس نے مولوی اکرم کو بلایا۔ مولوی نے گھر میں گھوم پھر کر دیکھ کر کہا، یہ عام بات نہیں، بچے اکثر وہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر یہاں کچھ آیا ضرور ہے۔ کیا؟ سریا نے خوف سے پوچھا۔ مولوی نے آہستہ سے کہا، سایہ، نظر بد کا سایہ۔ سریا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ مگر کیوں ہمارے گھر؟ مولوی نے کہا، کہیں کسی کی نظر لگی ہے یا کوئی حسد، کبھی کبھی نیتوں کا زہر بھی دروازے پار کر آتا ہے۔ سریا نے ساری باتیں سن تو لیں، مگر ایک چیز اسے سب سے زیادہ ڈرا رہی تھی۔ مولوی جاتے جاتے کہہ گیا تھا، یہ سایہ ابھی پوری طرح گھر میں نہیں اترا، مگر اگر ایک بار جم گیا تو کوئی نہیں نکال سکے گا۔ اس رات مریم اور بھی زیادہ خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، جیسے کئی دنوں سوئی ہی نہ ہو۔ سونے سے پہلے اسے سریا کا ہاتھ پکڑا اور رستی ہوئی آواز میں کہا، امی، وہ آج پھر آئے گی۔ کون؟ کالے کپڑوں والی باجی۔ سریا کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ مگر تم نے کہا تھا وہ تمہاری دوست ہے۔ مریم نے آہستہ سر جھٹکا۔ اب وہ کہتی ہے میں اس کی ہوں۔ اس لمحے گھر میں لائٹ بجھ گئی۔ دروازہ خود بخود چرچرایا جیسے کسی نے انہیں دھکیلا ہو۔ کمرے میں ایک ٹھنڈی سانس جیسی ہوا پھیلی اور سریا نے محسوس کیا کوئی اور بھی وہاں موجود ہے۔ اس رات گھر عجیب خاموش تھا۔ سریا نے مریم کو اپنے پاس سلا لیا تھا، لیکن خود کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ باہر ہوا نہیں چل رہی تھی، مگر پھر بھی دروازے ہلکے ہلکے بج رہے تھے، جیسے کوئی انگلیوں سے انہیں چھو رہا ہو۔ رات کے ٹھیک 2:30 بجے سریا کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کان کے پاس سرکشی کی ہو، مجھے اندر آنے دو۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور مریم کو دیکھا۔ مریم سو نہیں رہی تھی، اس کی آنکھیں پوری کھلی تھی۔ مریم، امی، مریم نے ساکت آواز میں کہا، وہ آئینے میں ہے۔ سریا نے جھٹ سے کمرے کے سامنے لگے آئینے کی طرف دیکھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن اگلے ہی لمحے آئینے کی سطح جیسے سانس لینے لگی، ہلکی ہلکی دھند بننے لگی۔ پھر اس دھند میں سے ایک دھندلا سا سایہ نمودار ہوا۔ آکار عورت جیسا لگتا تھا، لمبی دبلی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی، مگر اس کا چہرہ دھند میں بھی صاف نہیں لگ رہا تھا، جیسے اس کے خد و خال ہی نہ ہوں، بس 2 سیاہ گڑھے جیسی آنکھوں اور ہونٹوں کی جگہ ایک کٹی ہوئی خالی لکیر۔ آئینے میں وہ آہستہ سر گھما رہی تھی، سیدھا سریا کی طرف۔ سریا کا سانس رک گیا۔ مریم رو بھی نہیں پا رہی تھی، صرف دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک آئینے پر زور کا دھچکا پڑا، جیسے کسی نے اندر سے دونوں ہاتھ مارے ہوں۔ پورا آئینہ تھر تھر کانپنے لگا اور آواز آئی، یہ میری ہے، اسے لے جاؤ۔ سریا نے فوراً مریم کو اٹھایا اور دروازے کی طرف بھاگی، مگر دروازہ خود بخود زور سے بند ہو گیا۔ چابی اندر سے گھم گئی۔ کمرے میں جیسے موت کی باسی بدبو پھیل گئی۔ آئینے میں وہ سایہ اب اور واضح تھا۔ اس کے کپڑے ہوا کے بغیر بھی لہرا رہے تھے، جیسے وہ پانی کے اندر کھڑی ہو۔ اس نے لمبے ٹیڑھے ہاتھ آئینے میں سے باہر نکالنا شروع کیے۔ ہاں، باہر آئینے کا شیشہ پگھل رہا تھا، موم کی طرح ٹپک رہا تھا، اور اس میں سے اس کا ہاتھ نکل رہا تھا۔ سریا پیچھے ہٹ گئی، مریم کو سینے سے چمٹا لیا۔ اللہ کے واسطے دور ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ سایہ رکا، پھر دھیمی سرد اور ہولناک آواز میں بولا، تم نے مجھے نہیں بلایا، کسی اور نے بلایا تھا، اور اب میں اپنا حق لینے آئی ہوں۔
सुरैया काँप गई, कौन, किसने, जिसे तुम अपना कहती हो लेकिन वो तुमसे बहुत जलन रखती है। ये सुनकर सुरैया का दिल जैसे सीने में डूब गया। इसे एक ही चेहरा ज़हन में आया, इसकी अपनी छोटी नंद फरीहा, जो हमेशा कहती थी कि मरियम की खूबसूरती सबको दीवाना करती है और शायद कहती भी हसद से थी। आईने में साया मज़ीद बाहर आ रहा था। अब वो कमरे में आधा उतर चुका था, इसके कदम ज़मीन पर नहीं लग रहे थे और कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। मरियम चीखी, अम्मी वो आ रही है। सुरैया ने सारा जोर लगाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा इस बार खुल गया जैसे किसी ने खुद छोड़ दिया हो। वो दोनों भागते हुए सीन में आईं। चाँद की हल्की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन जैसे ही वो फटक की तरफ बढ़ीं, साया तेज़ी से इनके पीछे आया, दीवारों पर दौड़ता हुआ, ऊपर-नीचे हर तरफ। ये मंज़र इतना गैर इंसानी था कि देखकर ही खौफ जड़ों तक बैठ जाए। सुरैया ने चीखते हुए दरवाज़ा झटके से खोला और बाहर निकल गई। वो सीधा मौलवी अकरम के घर की तरफ भाग रही थी, पीछे मरियम रोती हुई। लेकिन मौलवी के घर पहुंचते ही सुरैया के कदम रुक गए। दरवाज़ा खुला हुआ था और सहन के बीच में मौलवी बेहोश पड़ा था। इसके इर्द काले धुएं जैसे निशान थे, जैसे कोई साया वहां खड़ा रह गया हो। सुरैया का जिस्म लर्जा दौड़ गया। साया अब इन दोनों के बिल्कुल पीछे खड़ा था। इसके कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन सर्द हवा सुरैया के कानों में सरसराने लगी। मैंने तुम्हें कहा था, आवाज़ फिसलती हुई आई। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। मरियम चीख पड़ी और इसी लम्हे गांव की मस्जिद में अजान की आवाज गूंजी। साया अचानक पीछे हटने लगा। इसके चेहरे की दो थरथरी हाथ मुड़ने लगे जैसे चल रहे हों और एक दिल दहलाने वाली चीख के साथ हवा में तहलील होने लगा। मगर तहलील होते वक्त इसने आखिरी बात कही, अजान तुम्हें आज बचा लेगी लेकिन हमेशा नहीं। सुरैया और मरियम खौफ से सिमट गईं। आज वो बच गईं, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। साया वापस आएगा और इस बार वो सिर्फ मरियम के लिए नहीं आएगा। मौलवी अकरम को होश में आने में पूरा दिन लग गया। सुरैया उसके पास बैठी रही, मगर मरियम घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। वो कमरे के कोने में दबक कर बैठी रहती, जैसे दीवारों पर भी इसे कोई साया दिखाई दे रहा हो। शाम ढलते मौलवी ने कमजोर आवाज में कहा, ये मामला बहुत संगीन है सुरैया। ये सिर्फ नजर बद नहीं, ये किसी ऐसी चीज की तरफ से है जो बुलाई गई हो। सुरैया के दिल में सवाल चुभने लगे, किसने बुलाया होगा, क्यों? मौलवी ने गहरी सांस ली। किसी ने तुम दोनों के लिए दिल में जहर रखा है, हसद, जलन, बोझ। ऐसे जज्बात जब हद से बढ़ जाए तो इंसान खुद भी नहीं जानता कि वो क्या खोल देता है। सुरैया ने सर झुका लिया। इसे वो तल्ख चेहरा याद आया। फरिया हमेशा तंज करती, कभी तारीफ ना करती, हमेशा मरियम को घूरती रहती। मौलवी ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा, फिर कहा, मुझे इस घर में जाना होगा, तुम्हें सब बताना होगा कि वहां पहली बार क्या हुआ था। सुरैया ने ऐसे से बताया कि मरियम की पहली तब्दीली फरीहा के घर से आने के बाद शुरू हुई थी। वहाँ सब लोग थे, महफिल थी, लेकिन फरीहा बार बार मरियम को अजीब नज़र से देख रही थी। इसके बाद से मरियम की हालत बिगड़ने लगी। मौलवी ने सुनकर फौरन फैसला किया, हमें इसके घर जाना होगा। वहाँ कुछ है, कोई निशान, कोई चीज इस पर इस साय ने कदम रखे हैं। शाम गहरी हो रही थी जब सुरैया, मौलवी अकरम और मरियम फरीहा के घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। दरवाजा बंद था, मगर अंदर से जलती मोमबत्तियों की हल्की रोशनी छिन रही थी। मौलवी ने दरवाजे पर दस्तक दी। फरीहा ने दरवाज़ा खोला। इसके चेहरे पर हैरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे इसे पहले से मालूम हो कि वो आने वाले हैं। आओ, अंदर आओ। आवाज़ में एक ठंडापन था। घर में दाखिल होते ही सुरैया का दिल कांप गया। दीवारों पर अजीब निशानात थे, स्याह धब्बे जो हाथों के निशानों जैसे थे, मगर आम हाथों से कहीं लंबे। उंगलियां टेढ़ी, जैसे वही जो आईने में देखा था। मौलवी ने आहिस्ता सांस लिया। ये निशानात, ये किसी इंसान के नहीं। फरीहा मुस्कुरा रही थी। क्या ढूंढ रहे हैं मौलवी साहब? मौलवी सख्त लहजे में बोला, तुम्हारे घर में कुछ है जो तुमने जानबूझकर बुलाया है। फरीहा पलटी और आयशा से बोली, हाँ बुलाया था। फरीहा का दिल बैठ गया। क्यों फरीहा, क्यों? मरियम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? फरीहा की आंखें सुर्ख हो गईं। सब कहते थे तुम्हारी बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत किस्मत वाली है, सब इसे प्यार करते, और मैं हमेशा साया रही, किसी की नजर में भी मकाम ना मिला। इसकी आवाज कांप रही थी, मगर गुस्सा उबल रहा था। मैंने सिर्फ चाहा कि जो मेरी नहीं तुम्हारी भी ना रहे। मौलवी अकरम गरजे, तो तुमने साय को बुलाया? फरिया ने सर झुका दिया। मैंने सिर्फ हसद के में चंद अल्फाज बोले थे, कुछ मंत्र किसी ने बताया था कि ऐसा करने से सिर्फ नजर लगती है, कभी कोई हाथ नहीं डालता, मगर इस रात कुछ और आ गया। फरिया चीख पड़ी, तुम जानती भी नहीं थी कि क्या बला आ जाएगी? फरिया ने आंसू पहुंचे, और अब वो मेरे काबू में नहीं है, वो तो मेरी भी नहीं सुनती। अचानक मरियम के पीछे ठंडी हवा का झोंका आया। सुरैया ने फौरन इसे पकड़ लिया। मौलवी की नजरें घर के आखिरी कमरे की तरफ गई। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से काली धुंध बाहर निकल रही थी। वो धुंध दीवारों पर चढ़ती, फर्श पर रेंगती और आहिस्ता आहिस्ता कमरे के बीच में जमा हो रही थी। और फिर एक औरत का साया धुंधला आकार उभरा, वही जो आईने में थी। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा वाज़ेह, ज्यादा करीब और ज्यादा ताकतवर थी। इसने मरियम को देखते ही चीख मारी, ऐसी चीख जैसे किसी ने लोहे को नोच कर दो टुकड़े कर दिए हों।
मरियम कानों पर हाथ रखकर ज़मीन पर गिर गई। सुरैया ने मौलवी की तरफ देखा। अब क्या करें? मगर साया आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ता रहा था। इसके कदम ज़मीन को छुए बगैर फिसल रहे थे, आंखें सिया गड़े और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट। मौलवी ने पहली बार खौफ के साथ कहा, ये अब आम साया नहीं रहा, किसी ने इसे मकाम दे दिया है। ये अब सिर्फ नजर बद नहीं, ये बला बन चुका है और इसका रास्ता रोकना आसान नहीं। साया मरियम की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। तो जैसे कमरे से निकलकर इसकी तरफ लिपक रही थी, फरिया पीछे हटी, खौफ से कांपने लगी और सुरैया ने दिल से आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह हमें बचा ले। लेकिन इस बार कोई आसमानी आवाज नहीं आई, अजान भी नहीं, सिर्फ साए की हौलनाक हंसी और अंधेरे का फैलता हुआ समुंदर जिससे बचकर निकलना मुमकिन ना था। कमरे में साई की मौजूदगी इतनी गहरी हो चुकी थी कि हवा तक ठहर गई। मोमबत्तियों की रोशनी बुझ नहीं रही थी, मगर इनकी लुएं मामूली सी हिल भी नहीं रहीं, जैसे डर भी इनके अंदर जम गया हो। साया आहिस्ता आहिस्ता मरियम की तरफ बढ़ रहा था। इसके कदम फर्श पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि वो धुन की तरह तैर रहे थे। मरियम की आंखें खौफ से सैत हो चुकी थीं। सुरैया ने इसे अपने पीछे कर लिया। इसके करीब न आना। साई की आवाज खरदरी और भारी थी। इसे मुझे दो, ये मेरी निशानी है, मेरा हिस्सा। मौलवी अकरम ने कुरान खोला और पढ़ने लगे। लेकिन लेकिन आयतों की आवाज सुनते ही हैरानकुन बात हुई। साया चीखने की बजाय हंसने लगा। ऐसी हंसी जैसे सैकड़ों गले हुए गले एक साथ हंस रहे हों। ये अल्फाज मुझ पर असर नहीं करते। मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो। मौलवी चौंके। तो तू जन्नात में से नहीं। साया करीब आया और उसके चेहरे के खंदुखाल धुन में से उभरने लगे। एक औरत का चेहरा, मगर बर्बाद शुदा, जैसे किसी ने इसका चेहरा जलते कोयलों से मुस्क किया हो। आवाज में सरगोशी की सरसराहट थी। मैं इंसान, और तुम लोगों ने ही मुझे ये बनाया। सुरैया के रोंगटे खड़े हो गए। इंसान? हाँ, कभी तुम्हारी तरह मुझे भी नजर लगती थी, हंस मिलता था और मैं भी कभी किसी की प्यारी हुआ करती थी। साया आहिस्ता आहिस्ता छत की तरफ उठा और फिर नीचे उतरा, जैसे पानी के अंदर तैर रहा हो। मगर एक दिन मुझे भी नजर बद ने निगल लिया। कोई था जिसने दुआ के बजाय बददुआ दे दी। किसी का बस एक जुमला, और मैं आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई। देखती रही, सुनती रही, मगर दुनिया में कटती गई। मौलवी रुक गए। तो सिर्फ नजर का असर नहीं, बल्कि इस नजर की मार से बनी एक भटकी हुई रूह है। साया खामोश रहा, मगर इसके इर्द गिर्द धुन का दायरा फैलने लगा। फरिया चीखती हुई पीछे हटी। मैंने तो सिर्फ हसद में चंद अल्फाज बोले थे, मैंने किसी की रूह नहीं बुलाई। मैंने गर्दन टेढ़ी करके इसकी तरफ देखा। तुमने दरवाजा खोला, मैं तो पहले से ही भटक रही थी, कोई रास्ता चाहती थी, और तुमने मुझे बुला लिया। इसने जोर से हंसी। मेरे आने के बाद अब जाने का कोई रास्ता नहीं रहता। कमरे में अचानक हवा चलने लगी, मोमबत्तियां बुझ गईं, घर का पूरा अंदरूनी हिस्सा तारीकी में डूब गया। फिर एक लम्हे बाद छाया तेजी से दीवारों, छत और फर्श पर फैलने लगा, जैसे पूरा घर इसके अंदर समा रहा हो। मौलवी ने जल्दी से पढ़ना शुरू किया। इसकी आवाज़ काँप रही थी। ये आम साया नहीं, ये लानत है, ऐसी लानत जो इंसान से जन्म लेती है। सुरैया ने पूछा, मगर ये मरियम को क्यों चाहता है? मौलवी ने खौफनाक हकीकत बताई। जो रूह नज़र बद से मरती है, वो अपनी जगह नहीं, ज़िंदगी को बाँट सकती है। वो रहती नहीं, बदलती है। ये मरियम को चाहती है ताकि इसमें दाखिल हो जाए। सुरैया का दिल फट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अब देर हो चुकी थी। साया पूरी तरह इनके ऊपर छा गया। दीवारों पर साया, हाथों के बड़े बड़े निशान उभरने लगे। फर्श में दरारें पड़ने लगीं, जैसे किसी ने अंदर से ठोकर मारी हो। मरियम की सांस तेज होने लगी। साया ने धुन की शक्ल में आहिस्ता से इसके गिर्द घूमना शुरू किया। इसकी आंखें स्याह होने लगी, होंठ नीले पड़ गए। अम्मी, मुझे सर्द लग रही है। मरियम की आवाज कपकपाती, जैसे कोई खाई के अंदर से बोल रहा हो। साया सरगोशी करने लगा। बस थोड़ा सा और। मौलवी चीखते, सुरैया इसे पकड़ो, आंखें बंद कर दो। मगर देर हो चुकी थी। साया मरियम में दाखिल होने लगा था। धुंध इसके बदन में खींच रही थी, जैसे किसी ने इसका साया इसके जिस्म से निकाल कर किसी और में बदल दिया हो। मरियम की आवाज़ बदलने लगी। अम्मी, वो मेरे अंदर आ रही है। सुरैया टूट गई। या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले। फिर एक चीख इतनी जोरदार कि घर की खिड़कियां लरस गईं और सब कुछ खामोश हो गया, बिल्कुल खामोश। साया गायब, धुंध गायब, घर की रोशनी वापस आ गई। मौलवी ने घबरा कर पूछा, मरियम कहाँ है? सुरैया ने ऐसा से मुड़कर देखा। मरियम वहां खड़ी थी, मगर उसकी आंखें बिल्कुल स्याह हो चुकी थी। वो धीमी आवाज में बोली, अम्मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मौलवी के चेहरे का रंग उड़ गया। सुरैया मरियम नहीं रही। सुरैया जमीन पर बैठ गई। तो फिर ये कौन है? मौलवी ने नजर झुकाई। साया इसके अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो चुका है। रात लंबी होने वाली थी और साया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल मार्का अभी बाकी था। मरियम की आंखों में अब इंसानी रोशनी नहीं थी। वो बिल्कुल स्याह थी, गहरी, खाली, जैसे किसी अंधे कुएं की तह। इसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, लेकिन वो सुकून नहीं, किसी और का कब्जा था। सुरैया साकत रह गई। मरियम बेटा। मरियम ने ऐसा सर उठाया। इसकी मुस्कुराहट हौलनाक थी। मैं मरियम नहीं हूँ, मगर वो भी यही है, कहीं अंदर, बहुत अंदर।
मौलवी अकरम काम उठे कि साया मुकम्मल कब्जे में है, अगर इसे अभी ना रोका गया तो मरियम कभी वापस नहीं आएगी। सुरैया के आंसू बहने लगे। मौलवी साहब कुछ करें खुदा के लिए। मौलवी ने किताब खोली और घबराहट में फर्क पलटने लगे। इसके लिए हमें उस जगह जाना होगा जहाँ पहली बार साया इंसान बना था, जहाँ इसकी मौत हुई, जहाँ इसकी लानत पैदा हुई। फरिया जो गोशे में बैठी कांप रही थी धीमी आवाज में बोली, वो जगह, वो तो कब्रिस्तान के पीछे पुराना कुआं है, वहाँ एक औरत मर गई थी, लोग कहते थे इससे बददुआ लगी थी। मौलवी ने सख्ती से सर हिलाया। हाँ, वही। वो सारा अज़ाब इस कुएँ से बंधा हुआ है। अगर वहाँ जाकर इसके वजूद को तोड़ दिया जाए, तो शायद मरियम बच जाए। सुरैया ने बगैर सोचे कहा, मैं जाऊँगी अभी, चाहे जो हो। मौलवी ने इसे बाजू से पकड़ा। लेकिन याद रखना, वहाँ जो भी होगा खौफनाक होगा और साया तुम्हें वहाँ जाने नहीं देगा। मरियम, जो दरअसल साया थी, आहिस्ता से मुस्कुराई। तुम लोग वहाँ पहुँच भी नहीं सकोगे। इसकी आवाज़ में सरगोशी जैसी बाज़कश थी, जैसे 2-3 आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। आधी रात हो चुकी थी। हवा साकिन, आसमान मुकम्मल स्याह, गाँव की गलियाँ कब्रिस्तान की तरह खामोश। सुरैया, मौलवी और फरीहा हाथों में टॉर्च पकड़े कुएं की तरफ जा रहे थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। शाखें बगैर हवा के हिल रही थीं। पत्तों की ससराहट में नामालूम आवाज छुपी थी। फरिया ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर हम वहां पहुंच कर भी ना रोक सके तो? मौलवी रुक कर बोले, साया जितना पुराना हो इतना ताकतवर होता है, ये आसान नहीं होगा। उसी वक्त रास्ते में एक लालटेन खुद ब खुद जल गई। खुद ब खुद सुरैया चीखी, ये किसने जलाई? मौलवी ने दबी आवाज में कहा, ये इसका इशारा है, वो जानता है हम यहाँ आ रहे हैं। वो तीनों कुएं के पास पहुंचे। कुआं वो सीधा कई लगा हुआ और उसके किनारे पर अजीब से धब्बे थे, जैसे किसी ने वहां आग जलाई हो। मौलवी ने कुएं के गर्द जमीन खोदना शुरू की। सुरैया टार्च की रोशनी डाल रही थी। चंद मिनट बाद मौलवी का बेलचा किसी चीज से टकराया। मौलवी ने हाथ डालकर मिट्टी हटाई और फिर ऐसी चीज निकली जैसे देखकर सुरैया की सांस रुक गई। एक पुरानी लड़की की चोटी, खुश्क और भरभरी, और इस पर बंधी थी खून के रंग की रिबन। मौलवी ने गहरी आवाज में कहा, ये इसी रोत की निशानी है, इसकी रूह उसके बालों के साथ बंधी है। अगर ये निशान तोड़ दिया जाए, साया बेघर हो जाएगा और फिर मरियम आजाद हो सकती है। सुरैया ने फौरन वो चोटी पकड़ ली, लेकिन तभी तेज हवा का तूफान उठा। दरख्त चीखने लगे, जमीन हिलने लगी और मरियम असल में साया कुएं के पीछे खड़ी थी। इसकी आंखें पहले से भी सया, चेहरा मुश्क, होंठ नीले, बाल खुद ब खुद लहरा रहे थे। वो वही है, मेरी निशानी, उसे जमीन पर रख दो, वरना मैं ऐसे तुम्हारे हाथों से छीन लूंगी। सुरैया ने चोटी अपने सीने से लगाई। मैं कुछ नहीं वापस दूंगी, मेरी बच्ची को छोड़ दो। साया चीखा। ऐसी चीजें कुएं से पानी उबला, दरख्त झुक गए। मौलवी ने कुरान बुलंद किया। फरीहा ने दोनों हाथों से कान बंद किए। साया आगे बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन काली पड़ती जा रही थी। सुरैया ने आंखें बंद की और पूरी कुवत से चोटी कुएं में फेंक दी। जैसे ही चोटी कुएं में गिरी, पूरे इलाके में ज़लज़ले जैसी कपकपाहट हुई। साया पीछे हटने लगा, चीखने लगा। इसके चेहरे की धुन टूटने लगी, वजूद बिखरने लगा। नहीं, नहीं, मेरी निशानी, मेरा वजूद, मुझे मत मिटाओ। वो चीख-चीख कर तहलील होने लगा। धुंध के ज़र्रे आसमान में बिखर गए। फिर खामोशी, बिल्कुल खामोशी। हवा ठहरी, दरख्त रुके, कुएं पुरसुकून हो गया। पीछे से एक हल्की सी आवाज़ आई, अम्मी। सुरैया ने पलट कर देखा, मरियम बेहोश पड़ी थी। वो भागकर इसे पकड़ती हुई रोने लगी, मेरी बच्ची, मेरी जान। मौलवी ने इसके सर पर हाथ रखा। खुदा का शुक्र है वो वापस आ गई। साया खत्म हो गया। फरिया सिसकियां ले रही थी। मैंने जो किया वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म था। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। सुरैया ने कुछ नहीं कहा, बस मरियम को सीने से लगा लिया। दिन की पहली रोशनी अफक पर नमूदार हो रही थी। साया सच में खत्म हो चुका था, लेकिन जाते जाते वो एक चीज छोड़ गया था। एक आखिरी होलनाक याद। कुएं से अभी भी कब कुएं से अब भी कभी कभी हल्की सी सरगोशी सुनाई देती है। मैं अभी भी देख रही हूँ।